Hello everyone, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. Today we are going to solve the sample paper 8 of Standard Maths, section B and C. Section A already हमने कल complete कर चुके हैं, so आज हम लोग section B and C solve करेंगे. चलो then let's start with question number 21. The midpoint of 3p and 4 3p4 and -2 2q, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या दिया है 2 and 6. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. ओके, p and q, प्रोडक्ट ऑफ द p and q हमें निकालना है. सो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा 2 6. ओके, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ. सो आपको जस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा. एक्स वाई इज इक्वल टू x1 plus x2 upon 2. Another point is y1 plus y2 upon 2. Okay, this is the midpoint formula. Now we will start the solution. So same formula पे हम डालेंगे. x and y की जगह पे हमारा 2 and 6 is given, is equal to x1 is 3p plus x2 is -2 upon 2. Then y1 is 4 plus 2q upon 2. Okay, so x coordinate x point के साथ, so 2 is equal to 3p minus 2 upon 2, और 6 is equal to, sorry, और नहीं वो comma, 6 is equal to 4 plus 2q upon 2. So this is 4 is equal to 3p minus 2. So 3p is equal to 4 plus 2. ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा. So 3p is equal to 6. p is equal to 6 upon 3, that is 2. So इसका भी सेम तरीके से 4 plus 2q is equal to 6 2s are 12. 2q is equal to 12 minus 4, 8. q is equal to 8 upon 2, 4. So p we have 2, q is equal to 4. So pq is equal to 2 into 4, that is 8 is our answer, option D. Okay, option D हमारा आंसर है. Question number 22. In the below figure, DE is parallel AC. DE किसके साथ? AC के साथ पैरेलल है. So BAC ट्रायंगल को पहले कंसिडर करेंगे. In ABC triangle, DE is parallel to AC. Then by BPT, we can write BE upon CE is equal to BD upon AD. Okay, this will be our equation 1. In the next is DC is parallel AP. DC is parallel AP. So APB triangle को consider करेंगे. ABP triangle, DC is parallel to AP. Therefore BC upon CP, BC upon CP is equal to AD, BD upon AD, BD upon AD. This will be equation 2. Equation 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है? BD upon AD is equal to BE upon CE है, और BD upon AD is equal to BC upon CP भी है. Therefore, from 1 and 2, we can write here BE upon CE is equal to BC upon CP, right? BC upon CP. If BC is 4 and BP is 6, BC 4 दिया है and BP 6. Okay, so ये हुआ यहाँ तक. BP is equal to 4 given, 6, BP 6.
BP 6 and BC is equal to 4. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना। CP कितना होगा, BP पूरा दिया है 6 यहां से यहां तक, उसके बाद BC यहां से यहां तक दिया है 4। सो CP कितना होगा, CP is equal to BP minus BC, that is 6 minus 4, 2. BC BC कितना दिया है, BC 4 एंड CP is equal to just now हमें मिला है 2. ओके, CP is equal to 2, so BC की जगह पे 4 लिखो, CP की जगह पे 2 लिखो, so this will be 2/1, that means therefore ratio is 2:1. कुछ नहीं, जो गिवन है उसी को कंसिडर करके हम क्या निकाल सकते हैं पहले वहां से ही देखो। एंड पहला जो डी पैरेलल AC था तो उसमें से भी हमने पहले फाइंड किया BPT डाल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच when increased by 17 becomes exactly divisible by 520 and 468. यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझो। स्मॉलेस्ट नंबर दिया है तो डेफिनेटली क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, बट किसका निकालना है। दो नंबर दिया है 520 एंड 468, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। सो कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें कि हम 17 ऐड करते हैं तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाता है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 निकालना है। सो बिफोर दैट व्हाट वी वांट, फैक्टर्स ऑफ द 520, 2 to the power 3 into 5 into 13। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर into 13। देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, 2 क्यूब, हाईएस्ट डिग्री जो है उसे ही कंसिडर करना है, 3 स्क्वायर into 5 into 13। So this will be your 8 into 9 into 5 into 13. So 4680। ये नंबर अभी इसमें क्या करना है, 17 माइनस करना है। क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 4680 minus 17 is equal to 4663. So this is the final answer. अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4663 which when increased by 17, इसमें अगर हम 17 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 4680 which is exactly divisible by 520 and 468। अभी ये 4680 is exactly divisible by 520 and 468, but this is not divisible। ये नंबर में हम 17 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा। आया समझ में। सो इसीलिए हमने पहले एलसीएम निकाल के उसमें से सिर्फ हमें 17 माइनस करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमें जो है वो मिल जाएगा। 24th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, राइट। पॉलिनोमियल व्हाट इज गिवन, px is equal to 3x square minus kx plus 6 is 3, मतलब सम इज 3। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, जहां पे आपको लग रहा है ओके यहाँ पे गिवन है तो इमीडिएटली वहां पे लिख लेना है। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k कौन से जगह पे है, k कहाँ पे है, सम ऑफ द जीरोस की जगह पे k है। So here we can write alpha plus beta is equal to minus b upon a, right? This is our formula. So 3 alpha plus beta की जगह पे 3 minus of minus k upon 3,
एक ही जगह पे क्या है, 3 है, 3 डाल दिया, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू के. सो द वैल्यू ऑफ के इज 9, ऑप्शन बी. डन. ओके. 25th question. Which type of lines are represented by a pair of linear equation? कौन से equations है? 4x plus 3y minus 1 is equal to 5. 12x plus 9y is equal to 15. Okay. ये जो फर्स्ट वन है उसे और भी करना है. 4x plus 3y minus 1, ये 5 को LHS में लेके आ जाते हैं 0. So this will be 4x plus 3y minus 6 is equal to 0. This is first equation and this is second equation. So here first already मैंने क्या बोली थी, a1 अपन a2 लिख देना है, b1 अपन b2 लिखना है, c1 अपन c2 लिखना है. Just don't put any sign in between them. So a1 अपन a2 is, this is first equation, this is second equation, 4 upon 12. And b1 upon b2 is 3 upon 9. c1 upon c2 is minus 6 upon minus 15. ये 15 RHS में है, वो LHS में आता है तो प्लस 15 में सॉरी माइनस 15 में कन्वर्ट होता है. सो हियर 1 upon 3, 1 upon 3 and this will be your 2 upon 5. So साइन कौन सा आएगा, बीच में इज इक्वल टू एंड इधर नॉट इक्वल टू साइन. Right, this is so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. So ये जो कंडीशन है ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइंस का कंडीशन है. So option C is the correct option. Therefore condition satisfied for the parallel lines. Okay. Question number 26. An uniform path runs around a circular path. मतलब एक रास्ता है वो सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव हो रहा है, राइट. So the outer and the inner circumference, the difference of the outer and inner circumference is 132. फाइंड इट्स विड्थ. विड्थ मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये हमें फाइंड करना है. सो हमारे पास क्या है, लेट द रेडियस ऑफ द आउटर रिंग इज r1 एंड इनर रिंग इज स्मॉल r1. सो गिवन इज व्हाट, 2 पाई कैपिटल R1 माइनस 2 पाई स्मॉल r1 इज इक्वल टू, ओके आर ले लेते हैं, कैपिटल और स्मॉल लिया है तो ओनली आर ले लेते हैं. चलो R1 निकाल दो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर से. कैपिटल R एंड स्मॉल r वी विल मेंशन दैट. ओके, सो यहाँ पे वंस अगेन आई एम डूइंग, दिस इज द आउटर, दिस इज द इनर. आउटर का है कैपिटल R, इनर का है स्मॉल r रेडियस. This is the capital R and small r. Width means this one. We need to find out. So this width given is what, 2 pi r minus 2 pi small r is equal to 132. So take common 2 pi capital R minus r is equal to 132. We can simplify 2 multiplied by 22 upon 7. R minus r is equal to 132. 44 upon 7. R minus r is equal to 132. पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. चाहे तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर पाऊंगी, बट आप लोगों के लिए क्लियरली समझ में आए करके स्टेप बाय स्टेप आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. 44. Okay, so 11 fours are 11 ones are and 12s are. So 2s are 4 ones are 4 3s are. So r minus r कितना आया, 21 मीटर. ये विड्थ कैसे निकलेगा, ये जो बड़ा वाला है ये r है, छोटा वाला जो है ये स्मॉल r है. सो ये निकालने के लिए कैपिटल R स्मॉल r इज विड्थ. सो हमें मिल गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दैट इज 21 मीटर.
Question number 27. A box had tickets numbered from 11, 12, 13 up to 30. So what is the total outcome here? Total outcome, पहले total outcome हम find out करते हैं, then favorable outcome. Total outcome हमारा है 30 minus 11, that is 19, plus 1, 20. So ये जो steps है ये आपको करना ही है. अगर आपको नंबर्स दे देता है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑल द नंबर्स 11, 12, 13 ऐसे काउंट करने से अच्छा है कि ये स्टेप्स कर दो. फर्स्ट स्टेप में एंडिंग नंबर एंड स्टार्टिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे एंड उसमें 1 ऐड करोगे तो टोटल आउटकम आपको निकल जाएगा. नाउ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है? कंडीशन क्या दिया है? ग्रेटर देन 15 एंड मल्टीपल ऑफ 5. ओके, मल्टीपल ऑफ 5 में क्या है? 5 है, 10, 15. सो 15 से ग्रेटर देन पूछा है तो 20 वी कैन टेक, देन 25, देन 30. सो 1, 2, 3 फेवरेबल आउटकम्स आर 3. देयरफॉर रिक्वायर्ड probability is equal to favorable outcome upon total outcome. So 3 upon 20 is the correct answer. 28. What is the value of m square minus n square if m is equal to tan theta plus sin theta and n is equal to tan theta minus sin theta? So हमें क्या फाइंड करना है? m square minus n square का वैल्यू फाइंड करना है. Okay, m square minus n square. So I can write here m plus n and m minus n, right? This is the formula of a square minus b square. So m की जगह पे वैल्यू डालते हैं tan theta plus sin theta प्लस n की जगह पे tan theta minus sin theta. दिस इज द फर्स्ट वन, m plus n. ये हो गया. नाउ m minus n नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं होगा. tan theta प्लस sin theta माइनस tan theta. ये माइनस जो है n का वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस कर रहे हैं. माइनस माइनस प्लस sin theta, साइन चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट इसमें साइन थीटा कैंसल. सेकेंड इसमें tan थीटा कैंसल. सो 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 sin थीटा. ओके, नाउ 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 sin थीटा. यहां तक हम पहुंच गए. अभी क्या करेंगे? 4 पूरा मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 sin थीटा इंटू tan थीटा. बट कहीं पे ये ऑप्शंस में है क्या? कहीं पर भी नहीं है. सो अभी हमें क्या करना है? इससे 4 sin थीटा इंटू tan थीटा. इक्वेशन 1 में कुछ है क्या? हाँ, बट m n कैसे निकालेंगे? वेट ऑप्शंस कहाँ पे है? n is equal to this much, mn under root mn, square root of mn. ओके, अभी ये 4 sin थीटा tan थीटा हमारे आंसर्स में नहीं है, ऑप्शंस में. ओके, सो m n n फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो देखते हैं. 4 अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट डाल के साइन के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड tan एज इट इज रखेंगे वैसे ही. अभी देखो, इसका और इसका मतलब सेम ही होता है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. और ये tan स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे साइन थीटा एंड tan थीटा आएगा. ओके, सो इसको जस्ट मैंने अंडर रूट डाल के किया. वजह क्या है कि ऑप्शन में आपको देखोगे हर एक जगह पे अंडर रूट है. सो वो लाने के लिए ऐसे हमें करना है. नाउ 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस
cos square theta into tan square theta. So ये कंटिन्यू रहेगा 4 tan square theta minus, नाउ cos square into tan square क्या होता है, cos square theta into tan की जगह पे sin square theta अपन cos square theta. We can write, so 4 under root tan square theta minus cos square सिंप्लीफाई होगा तो sin square theta आया. तो यहाँ तक पहुंचे, अभी जगह नहीं है मुझे चिल्ड्रन, यहाँ पे आई एम जस्ट सॉल्विंग हियर. 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और उसी के नीचे ए माइनस बी. कहाँ पे करूं आपको समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट. ठीक, यहीं पे देख लो. और tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने डाला है ए प्लस बी ए माइनस बी. सो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है 4 अंडर रूट ए tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, m ऑलरेडी गिवन है. सो m tan थीटा माइनस साइन थीटा n. So what is our correct option? 4 under root mn. एक्चुअली ये आरडी में आपको क्वेश्चन ऐसे था कि m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा. सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रूफ 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn. ये प्रूफ में था. देखो प्रूफ को भी कैसे भी करके आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं. सो थोड़ा सोच के उसे कैसे हम कन्वर्ट करें. अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहा है, ऑप्शन के थ्रू आप आंसर्स लेने की कोशिश करो, समटाइम्स इट विल वर्क. अभी ऑप्शन में अंडर रूट था तो मैंने कोशिश किया कि चलो अंडर रूट डाल के हम लोग ट्राई करते हैं कि मे बी आंसर आ जाएगा. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 अंडर रूट mn. Question number 29. The area of a triangle formed by the line L1 and L2. Okay. So x एक्सिस के ऊपर and the x एक्सिस, जब भी x एक्सिस के ऊपर बोला जाता है तो x एक्सिस के जो पॉइंट्स है उसे बेस कंसिडर करोगे और y एक्सिस के पॉइंट्स को परपेंडिकुलर कंसिडर करोगे. ये याद रखो. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, आई थिंक यस, ए बी डी is equal to half multiplied by base multiplied by height. So half base कितना है, see here, यहां से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट कितना है, यहां तक है. सो दैट मीन्स दिस इज ओनली 1 यूनिट, 1. सो आपका आंसर है 7/2 स्क्वायर यूनिट्स. सिंपल. बट यहाँ पे आपको ना कंफ्यूजन करने के लिए सी पॉइंट भी दिया है. देखो, सो समटाइम्स व्हाट हैपन, कुछ कुछ बच्चे ना सी को भी कंसिडर करते हैं कि सी ए बी का करना है या किसका करना है, कंफ्यूजन. सिर्फ ये लाइन को देखना, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो एक्स एक्सिस बेस होगा, वाई एक्सिस के ऊपर अगर है तो वाई एक्सिस को बेस कंसिडर करना है आपको. Question number 30. In the figure, the value of AB upon BC, AB upon BC is equal to नहीं, plus BD upon AD is, so find out, यही करना है हमें, right? We need to find out this one. अच्छा, AB अपन BC प्लस BD अपन AD. अच्छा, तो फिर एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इट विल बी इजी. उतना स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है बच्चों तो. अच्छा, ये हुआ हमारा, कितना दिया है, 45 डिग्री पूरा. ये पूरा दिया है आपका 45 डिग्री. ओके, एंड छोटा सा ये वाला, this one only, that is 30 degree given. Okay, naming A B D C.
ए बी डी सी कर लिया। अभी हम लोग ए बी अपन बी सी देखते हैं, पहला वाला ए बी अपन बी सी। ए बी अपन बी सी कब होता है? साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपन हाइपो। कब होता है वो? साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए बी अपन हाइपो, बेस अपन एच, बी अपन एच। So this is what B upon H we can write. So B upon H पूरा लेते हैं 45 डिग्री। That means AB upon BC is equal to cos 45 degree. That is 1 upon under root 2. Done. Now BD upon AD, BD अपन AD, रुको देखते हैं, आई डोंट नो कहीं पे कुछ गड़बड़ होगा तो फिर से करना पड़ेगा। BD अपन AD, ओके, ये 30 को अभी कंसिडर करना है। BD हुआ हमारा साइड ऑपोजिट टू द एंगल दैट इज परपेंडिकुलर P अपन H। सो आई एम गोइंग टू टेक साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1 अपन 2, ओके, 1 अपन 2। नाउ दोनों को ऐड करना है, 1 अपन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपन 2। कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। cos 45 का 1 अपन 2। ए बी अपन बी सी दिया है ना क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट। ए बी अपन बी सी, यस ए बी, ओके, मैंने ए सी ले लिया। वही तो बोली, ऑप्शन में तो हमारा है ही नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। देखो अंडर रूट आया बट ऑप्शन में है नहीं, तो यहीं पे पता चला। अच्छा, ये दिस इज बी अपन पी, चिल्ड्रन दिस इज बी अपन पी नॉट एच। सो यहां से ये नहीं जाएगा, ये भी चला जाएगा। नीचे का करेक्ट है, बी अपन बी सी इज परपेंडिकुलर। देखो ए बी इज साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपन साइड ऑपोजिट टू द एंगल। सो बी अपन पी क्या होता है? cot 45 डिग्री, दैट इज 1। सो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपन 2, सो 2 प्लस 1 अपन 2 दैट इज 3 अपन 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यहाँ पे जब अंडर रूट आया ना, तभी एक कंफ्यूजन था कि ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो चलो फिर से और एक बार देखते हैं, कहीं पे छोटा सा भी गलती हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, what is the area of the shaded region in the figure where diameter AB is equal to 12 long and AB is trisected at point P and Q? Okay, यहाँ पे एक वर्ड दिया है trisected, that means AP is equal to PQ is equal to QB कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ लेट टेक दिस पॉइंट एज O, AOQ सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से A इसे दे देते हैं और एक पॉइंट R, ARP सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो इतना निकलेगा, इतना निकलेगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम निकल जाएगा नीचे का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल area of semi circle AOQ, AOQ, AOQ का रेडियस कितना होगा? PQ, PQ कितना है? 4। सो पाई आर स्क्वायर अपन 2, सेमी सर्कल का जो भी फॉर्मूला है। सो 22 अपन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर हियर 4 into 4, right, divided by 2। सो पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 22 into 16 अपन 7, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, 11, सो 11 into 16 अपन 7, ये हुआ हमारा सेमी सर्कल का क्या है? सेमी सर्कल का एरिया। सो मल्टीप्लाई करो, 11 into 16 आपको आएगा 176, 176
अपन 7, क्या है ये, कुछ सेंटीमीटर, यस, स्क्वायर cm। ओके, यहाँ पे भी फिर से हमने एक गलती किया है कि पाई का वैल्यू डाल दिया है। पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं था, ऑप्शन में पाई का वैल्यू दिया है। चलो फिर, तो फिर पाई का वैल्यू रख के ही सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन पाई आर स्क्वायर अपन 2, पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 into 4 अपन 2, दैट मीन्स 8 पाई। किसका आया 8 पाई? ए ओ क्यू का। नाउ एरिया ऑफ ए आर पी, ए आर पी ये पूरा 4 है, एपी इज 4, देन रेडियस कितना होगा 2। सो इसका पाई आर स्क्वायर अपन 2, दैट मीन्स पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2 अपन 2। सो 2 कैंसल, 2 पाई किसका निकला, ए आर पी का 2 पाई और ए ओ क्यू का 8 पाई। तो अभी शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा शेडेड, मैं एक ही साइड का निकाल रही हूं पहले, दिस वन। ओके, ये निकालेंगे फर्स्ट, तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। लेट मी चेक होता है कि नहीं। सो 8 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 6 पाई। हो गया, ये क्या हुआ 6 पाई cm स्क्वायर, यहाँ पे cm स्क्वायर, यहाँ पे भी cm स्क्वायर, बिकॉज एरियास है। नाउ ये ऊपर का शेडेड पार्ट 6 पाई स्क्वायर आया, देन उसमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ टोटल शेडेड पार्ट, total shaded part is equal to 2 multiplied by 6 pi, that is 12 pi cm square। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? पहले बड़ा सेमी सर्कल का निकालोगे एरिया, उसके बाद छोटे सेमी सर्कल का निकालोगे, माइनस कर दोगे तो ऊपर का शेडेड पार्ट आ जाएगा, नीचे के लिए जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2, दोनों शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अभी 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, one triangle is there PQR, okay, so on side PQ, T is the point, sorry, S is the point on side PQ and T is the point on side PR, and given is ST is parallel QR. So definitely which theorem we can use here? BPT. So given is what, PS upon SQ is equal to 3 upon 5. So PR is also given, how much, 28. What is the value of PT? अगर ये BPT में है, so we can write PS upon SQ is equal to PT upon TR. Am I right? Because BPT theorem we can use here. So PT upon TR is equal to 3 upon 5. जो रेशियो PS upon SQ के लिए है, same ratio we can use here also. So for PT, PT को as it is रखते हैं, because we have to find out PT. Now TR को we will write PR minus PT is equal to 3 upon 5. Now cross multiply, 5 PT is equal to 3 PR minus 3 PT. ये माइनस क्यों किया पता चला? पूरा PR से TR माइनस करेंगे तो PT आ जाएगा, सॉरी PR से P3 माइनस करेंगे तो TR आ जाएगा। जस्ट TR के जगह पे मैंने PR माइनस PT लिखा ना, माइनस सॉरी 5 PT माइनस 3 होगा, ये प्लस 3 PT इज इक्वल टू 3 PR। 8 PT इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय PR का वैल्यू दिया है 28, सो PT इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 28 अपन 8। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2s are 4 7s are, that is 21 upon 2. So 10.5 centimeter is our answer. Option C is the correct option.
33 question. The zeros of the polynomial polynomial is given under root 3x square minus 8x plus 4 under root 3. So अभी we will use the middle term splitting. मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 इंटू रूट 3 दैट इज 12 आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करेंगे तो -8. सो हियर अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 4√3 वी कैन राइट. देखो -2 एंड -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12, प्लस करोगे तो -8. सो कॉमन क्या जा रहा है यहाँ पे? अंडर रूट 3x वी कैन टेक कॉमन, x माइनस यहाँ पे कितना रहेगा? 2 अंडर रूट 3. 2 अंडर रूट 3. 6 से अंडर रूट 3 जाता है तो 2 अंडर रूट 3 रहता है चिल्ड्रन. कैसे? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2s are 6. ओके, सो यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा, x माइनस 2 अंडर रूट 3. सेम 4 से 2 चला गया तो ओनली 2. नाउ दोनों टर्म से x माइनस 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे. Another one is under root 3x minus 2. So x minus 2 under root 3 is equal to 0, or under root 3x minus 2 is equal to 0. So x is equal to, one answer is 2 under root 3, or here under root 3x is equal to 2, x is equal to 2 upon under root 3. दो वैल्यूज आए हैं. अभी है कि नहीं? लेट्स चेक. 2 under root 3 और एक 2√3 और 2 अंडर रूट 3. दैट इज ऑप्शन ए. 34. A box contains 40 pens out of which, so total pen out of which x are non-defective. If one pen is drawn at random, the probability of drawing a non-defective pen is y. ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे दिया है, टोटल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम भी है. If we replace the pen, this is the first case. If we replace the pen drawn and then add 20 more non-defective pens in this bag, the probability of drawing a non-defect pen is 4y. Okay, first case. Case 1 में क्या दिया है? Defective pens कितने हैं? Defective non-defective pens, sorry, this is not defective, non-defective pens दिया है. Non-defective pens are x. Total pens 40. So probability of किसका? Probability of non-defective pens. Non-defective pens are also given, x upon 40 is equal to y. This is case 1. Now case 2 पे क्या दिया है? If 20 more non-defective pens added in the bag, okay, 20 more non-defective pens added, तो non-defective pens का नंबर क्या होगा? x plus 20. एंड टोटल पेन्स का नंबर चेंज हो जाएगा. टोटल पेन्स इज इक्वल टू 40 प्लस 20 होगा. 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 हो गया. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन क्या होगा? x plus 20 upon 60 is equal to 4y given. So this is equation 1 and this is equation 2. Okay, so probability दोनों का सेम ही आएगा. अभी हम क्या करेंगे? अभी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से x plus 20 अपन 60 कितना आया था? 4y. सो यहाँ पे जो y का वैल्यू है ये हम लोग कहाँ से लेंगे? इक्वेशन 1 से लेंगे. ओके, x plus 20 upon 60 is equal to 4 multiply by x upon 40. हो गया. सो ये y का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में आया था वो हम लोग इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं सेकेंड केस में.
नाउ x प्लस 20 अपन 60 इज इक्वल टू 4x अपन 40. सो जितना यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग कर देंगे. दिस विल बी योर 10. 0 0 सिंप्लीफाई हो गया. सो बाकी अभी क्या है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 6x. सो 20 इज इक्वल टू 6x माइनस x. 20 5x. So 20 upon 5 is equal to x, that is 4. Question क्या है? Then evaluate the value of x. हो गया, हमारा वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 4 है. Question number 35. How many solutions are there for the following pair of linear equations? तो linear equation क्या क्या है? First वो लिख लेते हैं. x plus 2y minus 8 is equal to 0 and 2x plus 4y is equal to 16. Okay, so same a1 upon a2, b1 upon b2, don't put the sign, c1 upon c2. Write down a1 upon a2 is 1 upon 2, b1 upon b2 is 2 upon 4, and c1 upon c2 is minus 8 upon minus 16. because 16 यहाँ पे RHS में है, जब हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होके minus 16. So this will be 1 upon 2, this will also 1 upon 2, and it will also 1 upon 2. So कौन सा साइन आ रहा है तीनों के बीच में? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, which is infinitely many solutions. Okay, infinite solutions यहाँ पे आपको आएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन. इफ द वर्टाइसेस ऑफ एबीसी आर, ए कितना दिया है -1 -3, बी इज गिवन 2 1 and C is given 8 or and -4. So centroid का फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. ओके, जस्ट अभी वैल्यूज पुट करेंगे. -1 plus 2 plus 8 upon 3. Here is -3 plus 1 plus -4 upon 3. So -1 plus 2, that is 1 plus 8, 9 upon 3. And here -3 plus 1, -2, -2 -4, -6 upon 3. So points are 3 and -2. 3 and -2 is the correct answer, option B. Question number 37. In the given figure, triangle ABC is similar to triangle ADE. Okay, ABC is similar to ADE. Then the length of the DE is. तो find out क्या करना है? DE find out करना है. अगर ABC is similar to ADE है, so we can write here AB upon AD is equal to BC upon DE. AB upon AD, AB ABC का and AD ADE का, BC BC upon DE जो कि बेस है. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC, ABC में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे. 3 plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर. 3 plus 2 मतलब AD 3 दिया है, CD 2 दिया है. सो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 plus 144, that is 169. So AB square is 169. तो AB क्या होगा? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 169, that is 13. Okay, so by putting AB in equation 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं AB. सो AB के जगह पे 13, AD के जगह पे 3 एंड BC के जगह पे 12, D एज इट इज रखेंगे. सो यहां से हमें फाइंड आउट करना है DE इज इक्वल टू 36 upon 13 सेंटीमीटर. ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. फाइनल आंसर इज 36 upon 13
That is option C. Question number 38. In triangle ABC, right angle at B, find the value of 2 sin A cot A. If tan A is equal to under root 3. Okay. tan A अगर under root 3 हुआ तो tan में under root 3 कब आता है? 60 degree. That means tan A is equal to tan 60 degree. So A का वैल्यू कितना हुआ? 60 डिग्री. So A का वैल्यू हम सिर्फ वहां पे पुट करेंगे 2 sin A into cot A. cot ही है ना या cos है? cot. Yes, cot. 2 sin 60 degree into cot 60 degree. Now put the value 2 into 1 upon 2 multiplied by, sorry, sin 60 under root 3 upon 2, not 1 upon 2. Under root 3 upon 2 multiplied by 1 upon under root 3. तो सिंप्लीफाई हो गया, 2 सिंप्लीफाई हो गया, आपका आंसर आया है 1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है अभी. सॉरी 39. What is the point of intersection of lines x minus 3 is equal to 0, y minus 5 is equal to 0? Question number 39. The given lines are x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3. अगर सिर्फ x 3 है, so क्या होगा? 1, 2, 3. So this line is parallel to y-axis, right? So another point is given, y is equal to 5. Then y is y minus 5 is equal to 0. So y is equal to 5. Then ये पॉइंट जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये सीधा गया, ये ऐसे आएगा. सो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ? 3 और 5. सो जो दोनों कौन से लाइन पे इंटरसेक्शन हुए? 3 और 5 पे इंटरसेक्शन हुए. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 40. Shraddha visited a temple in the Bikaner, Rajasthan. On the way, she visited a fort. The entrance gate of the fort has the shape of quadratic polynomial, parabolic. The mathematical representation of the gate is shown in the figure. So if 1 of 0 of the polynomial is 7 and the 1, 0 of the polynomial is 7 and the product of zeros is minus 35. Okay, then polynomial representation of the gate is okay. अगर एक 0 minus 7 है, that means alpha and beta are 2 zeros. Alpha beta is given minus 35. Alpha is given 7. So 7 into beta is equal to minus 35. बीटा इज इक्वल टू माइनस 35 अपन 7 माइनस 5. तो अल्फा हमारे पास है, बीटा हमारे पास है. अभी हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. अल्फा कितना है? 7. बीटा कितना है? माइनस 5. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 7 minus 5x plus 7 into minus 5. So आपका यहाँ पे x square minus 2x minus 35 ये हमारा हुआ required polynomial. कहीं पे है क्या? Let's see. x square minus 2x minus 35 कहीं पे नहीं है. तो अभी इसे क्या करना है हमें? ये अगर नहीं है तो बट ये डिजिट्स आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है. देखो 2x भी है, 35 भी है. यहाँ पे भी 2x और 35 है, बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे 2x और 35 के सामने सेम साइन है और x के सामने प्लस का साइन है. अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंटायर पॉलिनोमियल को, मतलब माइनस के साथ मैं एंटायर पॉलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35. अभी ये हमारे ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन सी. ओके, विच इज ऑप्शन सी. तो यहाँ पे
हमें हो गया। अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम निकलने के बाद अगर साइन कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है बट सिर्फ उसका ऑपोजिट साइन दिख रहा है, देन यू कैन मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन। ओके, सो हो गया हमारा सेक्शन बी ऑफ द sample paper 8. So we will solve section C. Section C, question number 41. First case study question है. Due to corona pandemic, we need to follow certain rules, that is social distancing, washing of hands, etc. Three friends, namely Pratima, Qasim, and Rajni, went to a park to discuss something. They decided to maintain the social distancing due to the coronavirus pandemic and sat on the at a point P, Q, R respectively. So P, Q, R बैठे हैं. So उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P coordinates are 4 minus 3 and the coordinate of Q is 7 and 3. Coordinate of R is 8 and 5. Right? So the answer, then the answer following. Question number 1 is how far P and Q? So what is the distance between P and Q? Distance formula use करना है. What is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This will under root. Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now here x2 is 7 minus 4 whole square plus 3 minus of minus 3 whole square. Square root of 3 square plus 3 plus 3, 6 square. 9 plus 36, that is under root 45. So 45 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 9 into 5, the factors of the 45. अगर ऐसे नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स देखने हैं. अगर उसके फैक्टर में कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उससे पहले लेना है. जैसे कि अभी 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उससे क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, इट विल कम अंडर रूट 5 यूनिट्स. So the answer is 3 under root 5, option A. Okay. Next 42 क्वेश्चन देखते हैं. अरे ये क्यों इरेज किया, ये रहने देते हैं. क्वेश्चन नंबर 42, जस्ट वी विल इरेज दिस वन बिकॉज ऊपर के पॉइंट्स हमें फिर से लगेगा 42 क्वेश्चन में शायद. सो ऊपर के रहने दो पॉइंट्स. चलो, question number 42 is, if a tree is at x point x which is on the straight line joining Q and R. Q and R को एक tree join कर रहा है which is x. In the such that it divides the distance between them in the ratio 1:2. कौन से रेशियो पे? 1:2 रेशियो पे. Then the coordinate points of x. Section formula हमें डालना है बिकॉज रेशियो है. सो x इज इक्वल टू 1 into 8 plus 2 into 7 upon 1 plus 2. Again y coordinate 1 into 5 plus 2 into 3 upon 1 plus 2. So here 8 plus 14 upon 3. Here 5 plus 6 upon 3. So this will be your 22 upon 3 and this will be your 11 upon 3. So final answer is 22 upon 3 and 11 upon 3 are the options. Option D. 43 question. What is the midpoint of the line segment QR? Okay. अभी ये सेक्शन का हो गया, सो इरेज कर देती हूँ. एक्स का कोई जरूरत नहीं है अभी. मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें डालना है 43. मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. सो फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2.
whose मिड पॉइंट, हमें निकालना है क्यू आर का मिड पॉइंट. ओके, सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डालते हैं अभी. यहाँ पे 7 + 8 upon 2, another one is 3 + 5 upon 2. This is no 3 नहीं 2 है. So 15 upon 2 and 8 upon 2. अच्छा, पॉइंट में निकालना है या एज इट इज? नहीं, एज इट इज. बट 8 upon 2 we can simplify to 4. So ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखते हैं. अरे पूरा इरेज कर दिया, चलो नो प्रॉब्लम, वी विल रिफर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन. 44 question. As point Q lies between the point P and R, so the ratio in which Q divides the line segment joining P and R. Q point हमें दिया है, फिर से लिख देती हूँ. This is 4 and -3 point P. Q is given 7 and 3 and R is also given 8 and 5, but we don't know in which ratio Q divides P and R. So अभी हमें रेशियो निकालना है. जब भी रेशियो निकालना रहता है, क्या बोली थी? लेट द रेशियो, क्या लेना है? K:1. ओके, K:1 लेना है रेशियो को. नाउ सेक्शन फॉर्मूला हमें यूज करना है. सो 8K + 4 upon K + 1. Another one is 5K - 3 upon K + 1 is equal to क्या होगा? 7 and 3. ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं, हमारे पास रेशियो नहीं है. सो 8K + 4 upon K + 1 is equal to 7 and 5K - 3 upon K + 1 is equal to 3. सो पहले एक सॉल्व कर लेते हैं. 8K + 4 is equal to 7K + 7. 8K - 7K is equal to 7 - 4. K is equal to 3. K 3 हुआ, therefore K:1 कितना होगा? 3:1 is the ratio. Option C. Okay, option C है 3:1. Okay, question number 45 is the points PQR together makes an isosceles triangle, an equilateral triangle and क्या दिया है? स्केलियन ट्रायंगल एंड स्ट्रेट लाइन. अच्छा, अभी वो कैसे देखना है? वो देखने के लिए हमें हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ता है. ओके, हमारे पास तो पॉइंट्स है. सो क्लियरली द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमने ऑलरेडी निकाला है. P एंड Q क्वेश्चन नंबर 41 में हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 3/5 यूनिट्स. सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट QR. ओके, QR फाइंड कर देते हैं. QR is equal to 8 - 7 whole square plus 5 - 3 whole square. Again, it will come under root the square root of 1 plus 2, the square root of 1 plus 4. This is square root of 5. क्या आया? QR का 5 आया. So यहाँ से यहाँ तक 3/√5, यहाँ से यहाँ तक √5. अगर इन दोनों का सम PR से मैच होता है, then they are in a straight line. So PR हमें निकालना है 8 - 4 whole square plus 5 minus of -3 whole square. So it will be 4 square plus 5 plus 3, 8 square. That means √16 plus 64. So under root, this will be your 80, right? Yes. So again, same way, find out the factors of 80. 16 5s are 80 and 16 is a perfect square of 4. So 4/5. हो गया, PR 4/5 है. Now PR is equal to PQ plus QR. हो रहा है क्या?
yes हो रहा है because PQ is 3 under root 5 and QR is under root 5, that means 4 under root 5. Both are same, so they are in a straight line. तीनों एक straight line पे है. PQR in a straight line. Question number 46, second case study. A trailer is a large vehicle for hauling vehicles from one place to another or from the factory to the car showrooms. A leading manufacturer of cars in India has its factory located in Gurugram in Haryana. On a particular weekend, there was a surge in demand for cars. Two models of cars to be transported to various locations across the country. There were 792 cars of model A, किसका model A का, and 612 cars of model B. So इतना information हमारा सिर्फ है case study में. The maximum number of cars that can be loaded in a trailer such that each trailer has the same number of cars of the same model. जब भी मैक्सिमम नंबर बोला है तो क्या निकालना है, HCF निकालना है. याद रखो, मैक्सिमम नंबर जब भी बोला है देन फाइंड आउट द HCF ऑफ द नंबर्स. सो HCF ऑफ 792 and 612 is, so first we have to find out the factors. 792 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे then you will get 2 cube minus 3 square into 11. so आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करो. then 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 square 3 square into 7. ओके, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करते हैं, HCF में हम लोग लोएस्ट डिग्री को कंसिडर करते हैं. तो HCF इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. बस 11 एंड 17 कॉमन नहीं है, सो हम उसे लेंगे नहीं. 4 9s are 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नाउ 47 क्वेश्चन देखते हैं. The number of trailers required for transporting the cars is, the number of trailers required for transporting the cars is, कितने number of trailers हमें मिल सकते हैं. Okay. ये क्वेश्चन नंबर 46 को रिलेट करता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी लोडेड, कितने कार्स हुए, 36 कार्स हुए. And yes, as the maximum number of cars that can be transported in one trailer is 36, so we will require कितने trailers. मॉडल A में 792 cars हैं, तो 792 upon 36 is equal to 22 trailers, and this is for model A. Now 600 कितना था, 12 upon 36 is equal to 17 trailers for model B. So therefore required total क्या होगा, 22 plus 17, that is 39 trailers will be required. So 47 question related है 46 को. आंसर इज 39, ऑप्शन ए. 48 क्वेश्चन ये भी रिलेटेड है, बट यहाँ पे एलसीएम निकालना है. सो द एलसीएम ऑफ 792 एंड 612, अगेन ऑलरेडी हमने फैक्टराइजेशन किया था. 792 का सिर्फ फैक्टर्स लिखेंगे. 792 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, एंड 612 का 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17. देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री को कंसिडर किया, सॉरी हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करेंगे. 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, that means 8 multiplied by 9 multiplied by 11 multiplied by 7. So you will get answer 13464. Option D is the correct option. Now 2 more questions in section C. The power of 2 in the prime factorization of 792. देखो ये क्वेश्चन, ये मैं यहाँ पे ऐसे ही रखती हूँ.
कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, ये हमें जरूरत पड़ेगी फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला। 49, the power of 2 in the prime factorization of 792, 792 का prime factorization क्या है, 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 11. So what is the power of 2? Power of 2 is 3, therefore 3 is the answer, option C. The LCM of the smallest multiple of 4, the LCM of the smallest multiple of 4, तो नीचे का भी जरूरत नहीं है, रिलेटेड नहीं है। smallest multiple of 4, smallest multiple of 4 and smallest multiple of 6, तो दोनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है। So LCM of 4 and 6, what are the factors of 4? 2 square. What are the factors of 6? 2 to the power 1 into 3 to the power 1. Therefore LCM क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री जिसका है उसे कंसिडर करना है, 2 square into 3 to the power 1, that means 4 into 3, 12. So correct option is option B. Okay, done children. सैंपल पेपर 8 पूरा ओवर हो कवर कर दिया हम लोगों ने, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑल्सो कंप्लीटेड। डू साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो, करते जाओ प्रैक्टिस। तो अगर एनी डाउट्स आ रहे हैं देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज आपकी सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल PhD Digital Maths. Bye bye, see you in the next session. And in the next session, we are going to solve sample paper 9. Bye. See you.